Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm your anchor Lalema Aneja Dang and with me is my co-host Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। एसपी शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा। Thank you very much, Amit. Here we go. Reserve Bank of India maintains repo rate at 6.5% for sixth time in a row. Sensex tumbled 724 points to close at 71,428. Nifty down 213 points to settle at 21,718. And French aircraft manufacturer Airbus awards the biggest export order of aircraft door to be manufactured in India. आर्थिक सुर्खियों में रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 724 अंक की गिरावट से 71,428 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 213 अंक के नुकसान से 21,718 पे दर्ज हुआ। और फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने विमान दरवाजे निर्माण के लिए सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर भारत स्थित कंपनी को दिया। Reserve Bank of India has kept repo rate unchanged at 6.5% for the sixth time in a row. The six-member Monetary Policy Committee MPC voted by a 5-1 majority to keep the repo rate unchanged in its last meeting of the current financial year as retail inflation continues to be above its target of 4%. The repo rate is the interest rate at which banks draw funds from RBI to overcome short-term liquidity mismatches. Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Shaktikanta Das said the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility MSF rate and the bank rate at 6.75%. He has projected the retail inflation based on consumer price index at 5.4% in the current fiscal and 4.5% during the next financial year. The RBI governor highlighted that domestic economic activity remains strong and real GDP growth is 7.3% for the year 2023-24. This will be the third successful year for the GDP to grow above 7%. RBI has pegged real GDP growth for the next financial year at 7%. The RBI governor highlighted that agriculture activity is also holding up well despite lower inflation, lower reservoir level and delayed sowing. The governor also informed that global growth is expected to remain steady in 2024 with heterogeneity across the region. The global trade momentum remains weak. It is showing signs of recovery and is likely to grow faster in 2024, Mr. Das said. The government has mandated the central bank to ensure the retail inflation based on the consumer price index CPI remains at 4% with a margin of 2% on either side. So Dr. Sharma, lots of stories within a story of RBI. First question, it plans to, as they say, no news is good news, probably so. RBI decides to keep the repo rate unchanged at 6.5% for the sixth time in a row. That means those people who have taken loan can relax and take it easy. Yes, they can relax and going forward, we can expect some relief in the coming times because inflation is going to stabilize in the next few months and we look forward that inflation stabilizes at around 4.5% as projected by RBI. So that will provide a great room to RBI to reduce the repo rate, I think, in the start of new financial year. डॉक्टर शर्मा, जिस तरह से आपने बताया, रिजर्व बैंक ने आज की मौद्रिक नीति में 2-3 चीजों पे और भी ध्यान दिया है। जहां उन्होंने ब्याज दरों को तो रेपो रेट को यथावत रखा है, तो एक बात तो है कि फिलहाल सबने जिसने भी लोन या ऋण लिए हुए हैं उनकी ईएमआई में कोई कमी फिलहाल नहीं आने वाली, लेकिन बढ़ने वाली भी नहीं है जी। दूसरा, रिजर्व बैंक का ये भी कहना था कि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीदें काफी कम है या नहीं के बराबर हैं। क्या
महंगाई अभी भी चिंता का इतना बड़ा विषय है, क्योंकि 4% के जो उनका लक्ष्य है उससे भी ऊंची बनी हुई है अगर हम खुदरा महंगाई दर के बारे में बात करते हैं। तो महंगाई दर के बारे में अभी क्या स्थितियां हैं और क्यों अभी भी महंगाई काबू से कहीं बाहर है? देखिए, हमारी सरकार ने, आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं कि जो इन्फ्लेशन है उस ट्रैजेक्टरी को काफी सॉफ्टन किया है, और अभी हम देख रहे हैं कि 5.4% का इन्फ्लेशन है जो एवरेज इस साल में जो रहेगा। लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, खास करके जो कमोडिटी मार्केट्स में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज रहती हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि पीछे रेड सी में थोड़ी टसल हुई थी, जिससे कमोडिटी प्राइसेस वापस एस्केलेट होने की थोड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है, जो खास करके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। तो उसके मद्देनजर अभी भी कुछ ऐसे हेडविंड्स हैं जिनको हमें आने वाले टाइम में देखना होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि अगले साल में इन्फ्लेशन जो इस साल के एवरेज इन्फ्लेशन से काफी कम रहेगा, जैसे कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि 4.5% का इन्फ्लेशन रहेगा। तो वो बात तय है कि इन्फ्लेशन को डिसेलरेट तो होना है, बिकॉज वी हैव अंडरटेकन लॉट ऑफ मेजर्स, सप्लाई चेन्स आर आल्सो इंटैक्ट। तो उस संदर्भ में अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन अगर बेनाइन कंडीशंस में आता है, इन्फ्लेशन अगर स्टेबल रहता है, वो भी अगर 4.5% के आसपास आके स्टेबल हो जाता है, तब भी एक आरबीआई के पास एक ऐसा रूम रहेगा कि भी आरबीआई थोड़ा रेपो रेट में राहत दे सकता है। लेकिन ये बात जरूर है, जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के पहले तिमाही तक कोई ऐसी आशा ना रखें। तो पहले तिमाही तक का मतलब है कि हम अप्रैल मई में जाके कुछ ऐसी आशा रख सकते हैं कि कुछ रिलीफ मिलने के हमें चांसेस। जी, अप्रैल में जब रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति की बैठक होगी तो शायद वहां से कुछ अच्छे आसार निकलने की उम्मीद हो। लेकिन क्या उद्योग जगत के लिए अगर रेपो रेट यही रहता है तो उद्योग जगत के लिए फंड जुटा पाना, उसकी लागत, उसमें बढ़त तो बनी ही रहेगी, कहीं ना कहीं उसकी लागत में कमी नहीं आ पाएगी। ये क्या कुछ एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा उद्योग जगत की वृद्धि पे? क्योंकि पूंजी जुटाना और लागत अगर उसकी कम रहती है तो निश्चित तौर पे उद्योग जगत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। देखिए, जो उद्योग जगत के लिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उनके प्राइस कॉस्ट मार्जिन्स हैं, जो कॉस्ट फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। वो पहले ही हमारी जो ब्याज की दर है वो काफी ऊंची रहती है एज कम्पेयर्ड विद मैनी इकोनॉमीज। तो जब इन्फ्लेशन आता है तो उसके बाद जो रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है उससे और भी ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि फर्स्टली अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी रहेगी तो ग्रो नहीं कर पाएगी। जो डिमांड है वो और ज्यादा इम्पैक्ट होगी, और उससे जो उद्योग जगत को भी एंड ऑफ द डे नुकसान ही होता है। तो उद्योग जगत इसके लिए जिस तरीके से जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जब भी उनके ऊपर कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो उद्योग जगत इज ऑलवेज रेडी टू फेस दो चैलेंजेस, एंड दे सपोर्ट द thought process of the government to boost the economy and to create balances in the macroeconomic systems. Where is the role of agriculture in the whole India's big growth story? I would say the rural demand seems to be growing up. Urban demand is there. There is also the demand for MG Narega has also gone down. What does this tell about the health of our rural economy? एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इनकी बात के साथ, क्योंकि अभी आरबीआई ने जो डेटा दिया उसमें रबी की फसल की जो बुआई है उसमें भी 5% से अधिक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। ये कितना स्वस्थ संकेत है? क्योंकि जैसा मैंने पूछा कि अगर रूरल डिमांड हमारी बढ़ती है तो निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत स्वस्थ संकेत होंगे और कहीं ना कहीं उसका अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर सेक्टर का जैसे मैडम ने पूछा कि क्या रोल है और रूरल डिमांड का क्या रोल है, ये बहुत ही इनका प्राइम रोल है। ये मैं कहूंगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, उसी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ आती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, रूरल कंजम्पशन इंक्रीज होता है। जब रूरल कंजम्पशन बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड आती है, पीपल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर उसी से फैक्ट्रीज में भी एक्सपेंशन के चांसेस बनते हैं, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है और फॉर्चुनेटली जी और जो सरकार के प्रयत्न हुए, जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
so we're talking about agriculture. Dr. Sharma, when we think of agricultural growth in our country, we know that agriculture is dependent largely on weather in our country, and that makes it very vulnerable. How does that affect the economy? Because one moment the onions prices go up because at some point of time there is excess rain somewhere, there is rain deficiency somewhere, and that affects the entire food inflation, agricultural growth, and so on and so forth. Yes, very true. Because as I said, agriculture sector is the backbone of the economy, and agriculture sector create demand and push the trajectory of manufacturing also. During the last 4-5 years, we have observed a great momentum in the agriculture. Agriculture is growing more than 3% every year. Consistently growth is, I think that is very promising for the overall growth of the economy, and sector remained resilient in the difficult times also. Yes. As you said, that weather conditions, yes, these are very, very, I think, impact the trajectory of agriculture sector. But during the recent years, there is a move of the artificial intelligence, and there are weather forecasts by through the artificial intelligence. Right. So the people and the farmers know that how much time will take for the rainfall, or when are the rainfalls predicted in the next few years or months. So that is I think a great thing that has happened during the last few years, that now the artificial intelligence and the forecasting measures are coming very, very true, and they are forecasting adequately the weather conditions. So that's why farmers are gaining pace, and they are informed about the good or bad weather conditions, and that's why I think agriculture sector is getting momentum, and we are producing large agri-food every year, and there are records every year. And we are also good in the export trajectory. We increased our exports from $30 billion to $40 billion, and then more than $50 billion. I believe agriculture sector will become a great growth driver of Indian economy in the coming times, and create a lot of employment opportunities for the growing young population, particularly in the rural areas. Exactly. To add to what you're saying, the fact that the exports now entail not just, when we talk of agriculture, we just don't talk about wheat and paddy anymore. It means vegetables, it means entire horticulture, it means flowers, it also means fruits, vegetables, and millets, which we are stressing so much upon. Also, there's some other schemes like Kisan Samman Nidhi program, where 6,000 rupees is going into the bank accounts of farmers. There is a Kisan Fasal Bima Yojana and soil health card. All these measures, you think, have kind of strengthened the agricultural growth? Yes, sir. As I said, that reforms by the government during the last many years are now becoming visible and supporting the agriculture sector, and we look forward that agriculture sector grows in higher and higher trajectory and supports the economy to the higher level, and creates a lot of employment opportunities for the growing young population in so many areas of food processing and all the related areas. Right. कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक पिछले कुछ महीनों से थोक और खुदरा क्षेत्र में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का प्रायोगिक परीक्षण कर रहा है। अब सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न फायदों के लिए सीबीडीसी का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग जगत को भी अपने कर्मचारियों के लिए कारोबारी यात्रा जैसे विशिष्ट खर्चों के लिए सीबीडीसी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बैंक ने सीबीडीसी में ऑफलाइन कार्य करने की सुविधा का भी प्रस्ताव किया है, ताकि उन क्षेत्रों में भी लेन देन किया जा सके जहां इंटरनेट सेवा सीमित या कम है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अगर इस तरह से जो डिजिटल करेंसी अगर वाकई सेंट्रल बैंक निकाल देता, तो ये कितना बड़ा नया कदम होगा और कितना महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए, ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और ये एक असली कदम है। आई वुड से कि लोग पहले जैसे क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइंस में बहुत सारा अपना नुकसान कर बैठे हैं, काफी लोगों से सुनते हैं। तो एक्चुअल में यूज क्या है? अगर जो अब जैसे जो हमारी डिजिटल करेंसी जो आरबीआई ने प्रोवाइड की है, उसका एक्चुअल यूज है कि हमें अपना जो वॉलेट है, जो अपना पेपर करेंसी को साथ में लेके चलने की जरूरत नहीं है। हम डिजिटली उनको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, और जिससे कि और ज्यादा सुविधा बढ़ेगी, जिससे कि आप जो पेमेंट्स हैं, कई बार आपके पास पैसा होता है, कई बार आपके पर्स में पैसा नहीं है, तो आपको एक बड़ी सुविधा दी गई है कि आप ऐसे बिना प्लान किए कहीं पे भी आप जहां पे आपको जरूरत
पड़ी तो आप अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट अप कर सकते हैं। तो इसे हम समझते हैं कि इकोनॉमी में जो रफ्तार है, जो ट्रांजैक्शंस की रफ्तार है और ज्यादा तेज होगी, और जो लेन देन के जो हमारे माध्यम है और ज्यादा स्ट्रांग। और इसमें जो ऑफलाइन का भी उपयोग करने की बात है, जहां पर कि जी बिल्कुल, वो होना ही था कि बिकॉज उसके बिना डिजिटल करेंसी का लाभ नहीं लिया जा सकता। आदमी ट्रैवल कर रहा है, वहां पे इंटरनेट की सर्विसेज नहीं है, तो आदमी कैसे, और वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए उसने अपना पेपर करेंसी रखना छोड़ दिया, तो ऊपर से इंटरनेट सेवाएं वहां पे अवेलेबल ना हो तो इंटरनेट नहीं चलेगा। तो भी एक और चीज रिजर्व बैंक ने आज कहा, खासतौर पर उन्होंने सभी बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को निर्देश दिया कि वो खुदरा और एमएसएमई ऋण देने के लिए मुख्य तथ्य यानी केएफसी वो अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। ये केएफसी इस जब लोन लेने वाला और लोन देने वाला दोनों के बीच का जो भरोसा है वो कितना बढ़ाएगा। और आमतौर पे बहुत सारे उपभोक्ता छोटे छोटे कामों के लिए लोन लेते हैं आजकल, तो घूमने के लिए जैसे भी कामों के लिए भी बहुत छोटे छोटे लोन लिए जाते हैं, कार लोन, पर्सनल लोन बहुत सारे हैं। वहां पे होता क्या है कि शुरुआत में तो बताया जाता है कि आपकी जो लोन की जो ब्याज दर है वो काफी कम है, लेकिन फाइन प्रिंट अगर उसका देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एड ऑन खर्चे होते हैं। ये केएफसी कितना इसको क्लैरिटी लाने में सहायक होगा? मैं समझता हूं कि इससे जरूर फायदा होगा, और इससे जो पहले कई बार जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा पर्दा रह जाना के जो बताया गया है और बाद में जो पता चला वो कुछ और था, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों को जो भी कर्ज लेने वाले लोग हैं उनको और अच्छे से समझने में थोड़ा मौका मिलेगा कि हम अपना जो हमारा जो डील है उसको हम किस तरीके से सेटल कर सकते हैं। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेंसेक्स पे। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1% की गिरावट से 724 अंक गिरकर 71,428 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% के नुकसान से 213 अंक गिरकर 21,718 पे बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक लगभग पूरी स्तर पर रहा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty had a negative session today, even as positive cues from the global share markets. The BSE Sensex plunged 724 points or 1% to close at 71,428. NSE Nifty fell 213 points or 0.97% to settle at 21,718. In the broader market at the BSE, the mid-cap index marginally went up by 0.08%, while the small-cap index slid 0.44%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 8 companies appreciated, while those of 22 companies declined. SBI climbed 3.54%, Power Grid gained 3.08%, and TCS added 1.29%. On the other hand, ITC tumbled 4.04% and Kotak Bank declined 3.53%. ICICI Bank lost 3.34% and Nestle India fell 3%. In sectoral indices at the BSE, 8 sectors registered gains while 12 witnessed losses. Telecommunication gained 1.27% and energy sector rose 0.99%. Oil and gas advanced 0.89% and utilities added 0.84%. On the other side, FMCG plunged 2% and BankX declined 1.80%. Financial services lost 1.46% and commodities fell 1.13%. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82 रुपये 96 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स गिरावट से 104 के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉक्टर शर्मा, शेयर बाजार की दशा और दिशा 1% की मोटे तौर पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उसमें गिरावट है और निफ्टी में भी तकरीबन इतनी ही गिरावट है। इस ऊंचे स्तर पर इतनी गिरावट के क्या मायने हैं? और आज हालांकि मोटे तौर पे अगर वैश्विक बाजारों की बात करें तो वहां का प्रदर्शन तो ठीक ठाक था, लेकिन घरेलू बाजारों में उसका असर सीधा तौर पे नजर नहीं आया। क्या माना जाए कि यहाँ की वैल्यूएशंस बहुत ऊंची हैं, निवेशक अभी भी मुनाफा वसूली कर रहे हैं, या ये मौद्रिक नीति के बाद अचानक से कुछ गिरावट आई? दोनों का कहीं कुछ आपस में लिंक नजर आता है? देखिए, ये जो गिरावट थी ये थोड़ी सेंटिमेंटल थी। मैं कहूंगा कि जैसे आरबीआई ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि भी अभी हम थोड़े टाइम में जाके आगे ब्याज की दर में थोड़ी कमी करने वाले हैं या बहुत जल्द हम इस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी का जो सेंटीमेंट जो फर्क आया मार्केट के मूड के ऊपर, उसी की वजह से थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी ग्रोथ मोमेंटम है, वो
वो बहुत स्ट्रांग है. इसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा एक गुस्सा दिखाने वाली बात के मार्केट की वजह से कि लो भाई हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ली और थोड़ा दिखा दिया. आपको थोड़े दिन में वापस वही स्तर मिलेंगे और मैं समझता हूं कि शायद उससे भी ऊंचे स्तर मिलेंगे, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं, जो अभी हमने बजट देखा, बजट में जो एक ब्रॉड बेस्ड जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं पूरी इकोनॉमी के लिए, जो एक अमृत काल के लिए जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जो भारत के विकसित भारत बनने के लिए अनाउंसमेंट्स हुई हैं, वो रिफॉर्म्स मार्केट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करती हैं. आज भी रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है उसमें भी उन्होंने कहा कि जो जीडीपी है वो 7% के टारगेट के बजाय 7.3% जाएगी. तो प्रॉफिट जी बिल्कुल, और मार्केट्स को भी पता है ये एक बस थोड़ा मोमेंटरी, एक सेंटिमेंटल जो एक थोड़ा वो एक ऊपर जाता चाहे नीचे. लेकिन कल अंतिम कारोबारी सत्र है इस सप्ताह का, तो क्या माने वापस से बाजार में तेजी का दौर या मजबूती का दौर फिर से हम देखेंगे? देखिए, इसके लिए एक आध दिन रुकना. देखिए, मार्केट्स को एक दिन के लिए प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मार्केट्स विल रिमेन स्ट्रांग इन दी कमिंग टाइम्स. देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन मार्केट्स, एंड बिकॉज आवर फंडामेंटल्स, आवर रिफॉर्म्स, आवर trajectory of announcements and all the because we are the growth leader right now in the global economy, and we are attracting a lot of investments from the many countries, and India is a promising growth leader as projected by many international organizations, that India will grow and grow in the higher and higher trajectory in the next many years. And the Honorable Prime Minister has said that guarantee है fifth से अब third largest economy बनेगी, भारत बनेगी. ये तो इसलिए आज का जो मार्केट का बिहेवियर था वो थोड़ा सा गुस्सा मान लीजिए कि भाई जरा नखरे. जी चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई यूरोपीय बाजारों पर. एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुझान रहा. जापान का निक्केई 2%, चीन का शंघाई कपोफिट सूचकांक 1.3% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% की बढ़त से बंद हुआ. हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 1.3% और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में 0.4% की गिरावट रही. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती का दौर रहा. फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग 0.6% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए. I look at the U.S. markets now. All the three major U.S. indices rose yesterday. The Nasdaq Composite Index gained 1%, the S&P 500 advanced 0.82%, and the Dow Jones Industrial Average rose 0.40%. फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने विमान दरवाजे का सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर भारतीय कंपनी को दिया है. नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि विमान के दरवाजे का ऑर्डर भारतीय एरोस्पेस और रक्षा निर्माता कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजी को दिया गया है. एयरबस इंडिया के अध्यक्ष रेमी मायार्ड ने बताया कि प्रस्तावित ऑर्डर एयरबस 220 विमान के दरवाजों के लिए दिया गया है. डायनामेटिक टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रमुख ने बताया कि विमान के दरवाजों का उत्पादन शुरू कर दिया गया है और अगले वर्ष की शुरुआत में इसकी आपूर्ति की जाएगी. दो महत्वपूर्ण खबर. अभी तक भारत जैसे देशों में आमतौर पर विमान या उसके कलपुर्जे वो सिर्फ निर्यात करने की बात सुनने में आती थी, लेकिन भारत इसका निर्यात करेगा, बना के निर्यात करेगा. ये कितनी महत्वपूर्ण खबर है और भारतीय जैसे मेक इन इंडिया का जो चलन था उसके लिए ये कितनी उत्साहजनक खबर है. जी बिल्कुल, जो सरकार का जो अभियान मेक इन इंडिया का जो 2014 में शुरू हुआ, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो अभी काफी विजिबल होने शुरू हो गए हैं. जैसे कि अभी हमने देखा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, पहले हम इंपोर्ट ही करते थे, अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. सेकंड लार्जेस्ट. तो उसी तरीके से अब और चीजों में मैन्युफैक्चरिंग में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो अब हमारे पास, अब तो सरकार ने एक फंड भी घोषित कर दिया है जो 1 लाख करोड़ का जो R&D एक्टिविटी के लिए. तो आप आने वाले टाइम में इसमें और ज्यादा इन चीजों में बढ़ोतरी देखेंगे कि हम बहुत सारी चीजें जो पहले इंपोर्ट करते थे या फिर उनके लिए हम बाहर के इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो अभी हम खुद ही उनके ऊपर चीजों को डेवलप कर पाएंगे और ऑलरेडी वो हमने शुरू कर दिया है. All right. The coal sector. Let's talk about the coal sector now. Very integral to the Indian economy. Coal sector has showcased the highest growth of about 10.6% among 8 core industries for December 2023 as per the index of 8 core industries ICI released by the Ministry of Commerce and Industries. In a release, the coal ministry said the cumulative index has increased by 12.5% during April to December 2023-24 over the corresponding period of the previous year. Coal is very important, and at the same time we are talking about renewable energy, and at the same time we are talking about harnessing solar energy where probably people will have a zero electricity bill. So which way, are there a contradiction amongst each other, Dr. Sharma? No contradiction, because coal is a must anyway. Yes, because we are going to become a developed economy, and our
our efforts are for the Viksit Bharat. And if you have observed during the interim budget, they have announced the 3 railway corridors. Right. Mineral, energy and cement. Because these 3 ingredients are very, very important for the growth momentum and to become a dual economy in the coming times. So that's why minerals and energy are the main heartbeats of the, I would say, the Indian economy. Engines of growth, or whatever we may call it. Yeah. Right. Moving on to oil. Oil prices rose more than 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at 0.90% higher at $79.95 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was also trading up 0.85% at $74.50 per barrel when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 140 रुपए की गिरावट से 62,383 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी 10 रुपए के मामूली बदलाव से 70,320 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना गिरावट से $2,047.10 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी मजबूती से $22.43 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। बहुत संक्षेप में सोने और चांदी के बारे में $2,000 से ऊपर का अगर इंटरनेशनल लेवल रहता है तो ये कितना स्वस्थ संकेत है और भारतीय बाजारों में कितनी उम्मीदें जगानी चाहिए। और चांदी भी $21 को क्रॉस करके अब $22 से भी $23 की तरफ बढ़ रही है। देखिए, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो काफी अभी अनसर्टेन है और हम कुछ दिन के बाद ही कुछ नई न्यूज देखते हैं कि उस कंट्री में उसमें ऐसे ऐसे टसल हो गई है, तो गोल्ड के प्राइसेस उसी वजह से आने वाले टाइम में भी इंटैक्ट रहेंगे और जो 2000 से ऊपर का स्तर है वो बना रहेगा, जो जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जी, डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। And before we close, a reminder of the headlines. Sensex tumbled 724 points to close at 71,428. Nifty down 213 points to settle at 21,718. Reserve Bank of India maintains repo rate at 6.5% for 6th time in a row. And adoption of principle-based framework for authentication of digital payment transaction to be proposed, says RBI Governor. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. अच्छा, चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 724 अंक की गिरावट से 71,428 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 213 अंक के नुकसान से 21,718 पर दर्ज हुआ। और फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने विमान दरवाजे निर्माण के लिए सबसे बड़ा निर्यात ऑर्डर भारत स्थित कंपनी को दिया। और इसी के साथ मार्केट मंत्र का ये अंक आज संपन्न होता है। कल फिर शाम को 6:30 बजे हम आपसे दोबारा मिलेंगे।